آپ اس وقت 2006 کے کراچی میں رہ رہے ہیں۔ عید کی نماز پڑھ کر آپ گھر واپس جا رہی ہیں۔ جگہ جگہ MQM کے کیمپس لگے ہوئے ہیں، جہاں پارٹی کے ترانے تیز آواز میں چلائے جا رہے ہیں۔ عید کا جانور ذبح کرنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ کسائی پتہ نہیں کب آئے گا۔ اسی وقت آپ کی نظر گلی میں لگے ایک پوسٹر پر پڑتی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کی کھالیں جمع کروائیں خدمت خلق فاؤنڈیشن میں۔ MQM کے دور میں عید الاضحیٰ کے دنوں کا ماحول ہی الگ تھا۔ عید کے دن جیسے ہی نماز عید ختم ہوتی، شہر کا نقشہ بدل جاتا۔ جیسے ہی کسی گھر میں جانور ذبح ہوتا، قصائی سے زیادہ جلدی خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکاروں یا کارندوں کو ہوتی تھی۔ وہ موٹر سائیکلوں، سوزوکی پک اپس اور بڑے ٹرکوں کے ساتھ گلیوں میں گشت کرتے، اور جیسے ہی کھال اترتی اسے فوراً اٹھا کر اپنے کیمپ منتقل کر دیتے۔ عید کے تینوں دن شہر کے کئی علاقوں میں، خصوصاً نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال، اورنگی ٹاؤن اور کورنگی میں شدید تناؤ رہتا تھا۔ کھالیں چھیننے پر مسلح تصادم، ہوائی فائرنگ اور بعض اوقات ہلاکتیں بھی ہو جاتی تھیں۔ جو کھال پہلے اٹھا گیا وہ اس کا مالک بن جاتا، اور کسی دوسرے ونگ کی گاڑی کسی مخصوص علاقے میں گھس جاتی تو باقاعدہ گینگ وار جیسا ماحول بن جاتا تھا۔ عید کے دنوں میں عزیز آباد 90 کے قریب واقع جنا گراؤنڈ کراچی کا سب سے بڑا کھال جمع آوری مرکز بن جاتا تھا۔ سڑکوں پر کھالوں سے لدے سینکڑوں ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی۔ پورے پاکستان کے میڈیا کے کیمرے وہاں موجود ہوتے، اور MQM کی قیادت باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بتاتی تھی کہ اس سال انہوں نے کتنی لاکھ کھالیں جمع کی، اور عوام نے بندوق کے زور پر نہیں بلکہ الطاف حسین کی محبت میں کھالیں دی۔ کراچی میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب عید پر جانور بعد میں آتا تھا، MQM کی کھال کی پرچی پہلے آ جاتی تھی۔ اس دور میں قصائی سے زیادہ جلدی MQM کے لڑکوں کو ہوتی تھی۔ ابھی تکبیر پوری نہیں ہوتی تھی اور وہ باہر خدمت خلق فاؤنڈیشن کا ٹرک لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ عید قرباں پر کراچی والوں کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ گوشت کہاں بانٹنا ہے۔ فکر یہ ہوتی تھی کہ کھال صحیح ہاتھوں میں نہ گئی تو کہیں اپنی کھال نہ کھلوانی پڑ جائے۔ تب کراچی میں قربانی صرف سنت ابراہیمی نہیں تھی، بلکہ MQM کے لیے سالانہ فنڈ ریزنگ مہم کا سب سے بڑا سیزن تھا۔ ایک وہ دور تھا جب کراچی کی کھالوں پر صرف ایک ہی الائنمنٹ تھی۔ جو کھال 90 نہیں پہنچی، سمجھو وہ لاوارث تھی۔ وہی کراچی کے قدیم علاقے لیاری، ساتھ ملیر، اولڈ سٹی ایریا اور شیر شاہ میں لیاری گینگ وار، جس کا ہیڈ رحمان ڈکیت تھا، اس کا اپنا ایک متوازی اور ہولناک نظام چلتا تھا۔ لیکن گینگ وار صرف منشیات یا بھتے تک محدود نہیں تھی۔ عید الاضحیٰ ان کے لیے بھی سالانہ کروڑوں روپے کمانے کا بڑا سیزن تھا۔ ان کا اپنا ایک ونگ تھا جسے وہ سماجی کاموں کا نام دیتے تھے۔ لیاری، بہار کالونی، چاکی واڑہ اور کھارادر جیسے علاقوں میں گینگ وار کے کارندے عید سے پہلے ہی تاجروں اور رہائشیوں کو پابند کر دیتے تھے کہ کھالیں صرف ان کے کیمپوں میں جمع ہوں گی۔ گینگ وار کی نظریں ان علاقوں پر ہوتی تھیں جہاں کھالوں کے بڑے بیوپاری اور گودام واقع تھے، جیسا کہ شیر شاہ اور جبلی مارکیٹ، تاکہ وہاں سے چمڑا سستے داموں ہتھیا کر آگے مہنگے داموں فیکٹریوں کو بیچا جا سکے۔ کراچی کی تاریخ میں سب سے شدید کھال جنگ MQM اور لیاری گینگ وار کے کارندوں کے درمیان ہوتی تھی۔ ان کے درمیان باقاعدہ سرحدیں طے تھی، لیکن عید کے دن زیادہ سے زیادہ سرمایہ سمیٹنے کی ہوس میں یہ سرحدیں اکثر ٹوٹ جاتی تھیں۔ گارڈن، عثمان آباد، دھوبی گھاٹ اور کورنگی کے بعض علاقے جہاں دونوں گروپوں کی آبادی مکس تھی، وہاں عید کا پہلا دن ابلتے ہوئے لاوے جیسا ہوتا تھا۔ اگر MQM کی ونگ خدمت خلق فاؤنڈیشن کا کوئی ٹرک بھولے سے بھی گینگ وار کے زیر اثر علاقے کے قریب سے گزرتا تو موٹر سائیکلوں پر سوار گینگسٹرز جدید اسلحے کے ساتھ نمودار ہوتے۔ وہ نہ صرف ٹرک چھین لیتے بلکہ ڈرائیور اور کارکنوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بناتے یا گولی مار دیتے۔ جواب میں MQM کے عسکری ونگ کی طرف سے بھی بھرپور رد عمل آتا تھا۔ چونکہ چمڑے کی قیمت اس دور میں بہت زیادہ تھی، اس لیے ایک ایک کھال پر چھریاں اور کلاشن کوفیں چل جاتی تھیں۔ عید کے تینوں دن لیاری کی گلیوں اور اولڈ سٹی ایریا میں پولیس اور رینجرز تماشائی بنے رہتے تھے۔
जबकि गलियों के मोड़ पर मोर्चा बंद गैंगस्टर्स आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी लेते थे कि कहीं उनमें खालें तो छुपाकर नहीं ले जाई जा रही। जब रहमान डकैत के बाद पीपल्स अमन कमेटी का कयाम अमल में आया तो गैंगवॉर को एक सियासी छतरी मिल गई। अब ईद पर खालें जमा करने के लिए बाकायदा अमन कमेटी के बैनर्स और कैंप लगने लगे। गैंगवॉर का असर सिर्फ खालें छीनने तक नहीं था, बल्कि ईद के दिन वो कोरंगी और साइट इंडस्ट्रियल एरिया के टेनरी मालकान को बराह रास्त फोन करके धमकाते थे कि हमारी जमा की हुई खालें इतनी कीमत पर खरीदनी पड़ेंगी, और किसी सनतकार में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनकी तय करदा कीमत से इनकार कर सके। कराची में ईद उल अजहा पर खालों के पीछे चलने वाली ये गैंग वॉर इस बात का सबूत थी कि इस शहर में जराइम और सियासत किस तरह एक दूसरे में पेवस्त थे। एक तरफ एमक्यूएम का इंतहाई मुनज्जम सियासी और फलाही नेटवर्क था, तो दूसरी तरफ लियारी गैंग वॉर का बेलगाम और वहशियाना क्लाशनकोफ कल्चर। इन दोनों के दरमियान खालों की ये दौड़ दरअसल कराची के फाइनेंशियल रिसीवर्स पर कब्जे की जंग थी, जिसने कई सालों तक कराची की ईदों को खून आलूद मसलहती मैदान बनाए रखा। ईद के दिन सड़कें लाउड स्पीकर्स की गूंज, सियासी कारकुनों की मुस्तैदी और खालों पर होने वाले मुसल्लह तसादुम से लरज उठती थी। लेकिन 2013 के बाद शुरू होने वाले सिक्योरिटी ऑपरेशंस, सियासी ढांचों की तब्दीली और चमड़े की आलमी मार्केट में आने वाले जबरदस्त बूम और करप्शन ने इस शहर का नक्शा यकसर बदल कर रख दिया है। आज के दिन यानी 2026 के कराची में ईद उल अजहा पर खालों की जमा आवरी का अमल माजी के मुकाबले में इंतहाई खामोश, पुरअमन और खालिसतन फलाही और मजहबी बुनियादों पर होता है। अब ना तो गलियों में क्लाशनकोफ बरदार लड़के घूमते हैं, ना 90 या लियारी में खालों के पहाड़ लगते हैं, और ना ही जबरदस्ती पर्चियां काटी जाती हैं। अब ये बाजार मुकम्मल तौर पर बड़े फलाही इदारे, दीनी मदारिस, मसाजिद और मकामी नेटवर्क्स के हाथ में आ चुका है। आज माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज कराची में ईद के बाद कुर्बानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन खाल बचाओ और ताफन छुपाओ की असल जंग शुरू होती है। ईद के बाद कराची की सड़कों का हाल देखकर लगता है कि जानवर तो चले गए, लेकिन अपनी निशानी यहीं छोड़ गए। बल्दिया वाले कहते हैं हमने खालें उठा ली, आवाम कहते हैं आपने सिर्फ वक्त गुजारा। खालें तो वही हैं जहां थीं, लेकिन इस पुरसुकून माहौल के पीछे एक तल्ख मुआशी हकीकत भी छुपी हुई है। चमड़े की कीमतों में तारीखी कमी। एक दौर था जब एक गाय की खाल हजारों रुपए में बिकती थी, मगर आज के दौर में कीमतें इतनी गिर चुकी हैं कि खालें जमा करना अब एक मुनाफा बख्श सियासी कारोबार के बजाय एक लॉजिस्टिक बोझ बन चुका है। सियासी जमातों के पीछे हटने के बाद जो खला पैदा हुआ, उसे कराची में मोतबर और बड़े फलाही इदारों ने पुर किया। अब शहर की खालों का सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं इदारों के पास जाता है, क्योंकि अवाम का उन पर एतमाद बरकरार है। फैसल ईदी की सरबराही में ईदी फाउंडेशन अब भी शहर भर से लाखों खाले जमा करती है। उनका नेटवर्क इंतहाई वसी है और उनके एम्बुलेंस सेंटर्स ईद के दिनों में खालें वसूल करने के मराकज बन जाते हैं। चीपा वेलफेयर एसोसिएशन, रमजान चीपा की ये तंजीम ईद के दिनों में शहर के चौक चौराहों पर बड़े बड़े कैंप लगाती है और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से इंतहाई मुतहरिक दिखाई देती है। जमात इस्लामी की अल खिदमत, ये फलाही विंग शायद इस वक्त कराची का सबसे मुनज्जम नेटवर्क रखता है। अल खिदमत के पास तालीम याफ्ता रजाकारों की एक बहुत बड़ी फौज है जो डोर टू डोर जाकर और बाकायदा डिजिटल बुकिंग एप्स के जरिए खालें जमा करती है। बशीर फारूकी की जेर निगरानी काम करने वाला सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट, जो रोजाना लाखों लोगों को खाना खिलाता है, अब ईद पर खालें जमा करने वाले सफ़े अव्वल के इदारों में शामिल है। फलाही इदारों के बाद खालों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार या वसूल कुनंदा मकामी मस्जिद और दीनी मदारिस हैं। कराची के बड़े मदारिस जैसे जामिया उलूम इस्लामिया, अल्लामा बेनूरी टाउन, जामा दारुल उलूम कराची कोरंगी, जामा रशीद और जामा बेनोरिया आलमिया ईद के दिनों में अपने तलबा और गाड़ियों को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजते हैं। मोहल्ले के लोग बड़ी तादाद में अपने करीबी मदरसे या मस्जिद के इमाम साहब को खालें सुपुर्द कर देते हैं ताकि उन खालों की आमदनी से गरीब और यतीम तलबा के अखराजात पूरे किए जा सकें। एमक्यूएम पाकिस्तान, पीपीपी या दीगर जमातें अब बराह रास्त पार्टी के नाम पर या अस्करी दबाव के जरिए खालें जमा नहीं कर सकती।
क्योंकि रेंजर्स और ज़ाब्ता अखलाक की सख्त पाबंदियां हैं। ताहम वो अपने रजिस्टर्ड फलाही इदारों या मकामी असर व रसूख के जरिए अपने गढ़ वाले इलाकों मसलन MQM अपने मखसूस इलाकों में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी या मलीर में अब भी कुछ हद तक खालें जमा करती हैं, लेकिन उनका हजम माजी के मुकाबले में महज चंद फीसद रह गया है। अगर हम माजी और हाल का मवाजना करें तो खालों की इक्तिसादी कद्र में जमीन व आसमान का फर्क आ चुका है। यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसने खालों के पीछे होने वाली सियासत और जराइम का खात्मा किया। दुनिया भर में अब असली चमड़े की जगह मसनूई चमड़े या प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल ने ले ली है, जो सस्ता और तैयार करने में आसान है। पाकिस्तान के लेदर मैन्युफैक्चरर्स को अब बैनुल अक़वामी ऑर्डर्स उस शरह से नहीं मिलते जैसे पहले मिलते थे। खाल को महफूज रखने के लिए फौरी तौर पर जिस नमक और केमिकल की जरूरत होती है, उसकी कीमतें पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में 300% तक बढ़ चुकी हैं। टैनरी मालिकान का कहना है कि हमें खाल जितने की पड़ती है उससे ज्यादा उस पर नमक लगाने और कोरंगी लाने का किराया लग जाता है। कराची में ईद की खालों का सफर इस शहर की बदली हुई सियासी और समाजी जेनेटिक्स का अकास है। एक वो दौर था जब खालें ताकत, बंदूक और बका की अलामत थी, और एक आज का दौर है जहां खालें महज एक मजहबी अतिया और कॉरपोरेट फलाही मश्क बनकर रह गई है। आज के कराची में ईद उल अजहा पर खालें अब वही लेते हैं जिन पर अवाम को हकीकी मानों में फलाही एतबार है। अल खिदमत, सैलानी, ईदी और छीपा जैसे इदारों ने अपने बेहतरीन लॉजिस्टिक निजाम के जरिए शहर को इस सालाना खौफ से निजात दिलाई है। अगरचे मुआशी तौर पर चमड़े की सनत जवाल का शिकार है और खालों से होने वाली आमदनी अब माजी के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर रह गई है, लेकिन कराची के शहरियों के लिए यह सौदा फिर भी सस्ता है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए की इस मईशत के बदले शहर का अमन वापस पा लिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें।